So why mechanical? इस साल का सिनेरियो क्या है प्लेसमेंट का? Ibara is one company, the Japanese Japanese based company company. कि मैकेनिकल करने के बाद कौन से ऐसे डोमेन है गवर्नमेंट हो आप? That is one advantage in placement, and in Right. highest packages I already. Hi everyone. So welcome back to another video. In this video, we have Pratik with us. So Pratik is studying in final year BTech in mechanical engineering from College of Engineering Pune, and he recently got placed in Tata Technologies. So hi Pratik. Hello Vaishnavi. I'm super excited to have you here because lots of students asking me from the starting कि यार mechanical का कोई चाहिए बंदा. Okay, that's why. So tell me about yourself, your educational background, and now you currently up to what? Okay. Hello Vaishnavi. Hello everyone. My name is Pratik Arankade. I am from Nagpur. I have completed my diploma from Government Polytechnic Nagpur, and currently I am in College of Engineering Pune. I am recently placed in Tata Technology. That's why I am here in this podcast to guide you the. Okay. So let's go back in the time where you had to choose diploma and 11 12. So why would you choose diploma over 11 12? Like कोई basic reason था क्या इसके पीछे? There is no reason that I have chosen the diploma हाँ. because after the 10th, after the 10th, my father and mother they suggest me to do the JEE advanced, do the preparation of JEE advanced, but I recognize myself and I say that the JEE is not my cup of tea. That's why that's why I think that I don't want to do that. So some of my friends suggest me that there is one diploma, Okay. diploma type of something that. So I have chosen that because I personally think that diploma is more easy at that time. But when I joined the diploma, it was not easy. it was not easy. Okay, so that's the reason. Yes. So आपका ये डिप्लोमा लेने का डिसीजन तो जो था वो वाज इट हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट? Yeah, it's very helpful. कुछ प्रेफरेंस मिलता है डिप्लोमा वालों को? Not preference, but it's an advantage for you because कि तुम 3 साल का डिप्लोमा किए हो, तुमने 3 साल का ग्रेजुएशन किए हो, तो तुम्हें 6 साल का तुम्हारे कोर में इंटरेस्ट है। तो आगे वाले को भी लगता है कि तुम अपने कोर के डोमेन को छोड़ के सीएस में शिफ्ट नहीं हो सकते। ग्रेजुएशन ऑल्सो यू गेट अ एडवांटेज बिकॉज इन डिप्लोमा देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स that are repeated in your graduation, so that's helpful for you. That would be more helpful for us. So why mechanical? Why not CSIT? एंड पहले से ये डिसाइडेड था कि यार हाँ मुझे मैकेनिकल ही करना है कि कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ? नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं था मुझे 10th के बाद करना क्या है। सबका होता है। मुझे मैकेनिकल इसलिए मिला क्योंकि मुझे 10th में कम परसेंटेज थे। अच्छा। एंड व्हेन आई गॉट diploma in mechanical, I decided that in graduation also I want to continue in mechanical field only. I don't want to change my branch. That's why. Okay. So that is the reason you choose diploma. So when it comes to the placement, mechanical is a royal branch. Like almost everyone got placed in mechanical. So मुझे ये बताइए कि इस साल का सिनेरियो क्या है प्लेसमेंट का? बेस्ट कंपनीज, एवरेज पैकेज, ऐसा कुछ? बेस्ट कंपनी इन सीओईपी इस सभी को क्वेश्चन रहता है। सो मैकेनिकल इन द मैकेनिकल, हाँ, इन मैकेनिकल कोर द फर्स्ट वन इज ग्लैड, second one is electromech, then Ibara is one company, the Japanese based company that gives a 19 lakh package, and there is also the lot of company that's Thermax. Then Thermax Garrett Motion is not coming in this year, but it's coming every year. The Tata Motor, and there's also a lot of companies. Okay, so the average package is 7.5 to 8. It's the average, and highest package is I already told the 19 lakh. And the lowest one is the COAB is only itself not allowed the any company that have the lower package than say 5 lakh. 5 lakh is the minimum package. So okay. So मुझे ये बताइए कि टोटल 180 स्टूडेंट है आप सब. Yes. तो उसमें के 124 as you told me कि उतने अपीयर हुए थे. हाँ. तो उसमें से अब तक कितने प्लेस है? अभी 3 महीने बाकी है प्लेस. Okay. In mechanical there are total 150 strength.
and 124 student has been enrolled for the placement. 124. And from that 124, near about 86-88 student has been placed. Okay, तो बहुत ज़्यादा placement हुई Yeah, है. yeah. There is lot of companies like. So ये बताइए कि अगर जब कंपनी आती है तो उनका क्राइटेरिया क्या रहता है टेक्नोलॉजी का, लाइक कुछ डिजाइन वाले रोल्स रहते हैं, किसको मैटलैब स्पेसिफिकली चाहिए होता है, किसको एनसिस वाला सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो ऐसा कुछ रहता है क्या इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स? If the company is coming here, they want is that your core knowledge should be good. Okay. The second part is of that you must know some of the soft skills, software वगैरह. The first basic thing is that you must know be a good command. You must have a good command in your core subjects. Okay. That's the basic thing. There is a 3 domain subdomain in mechanical, thermal, mechanical, thermal, manufacturing, and third one is design. So company आती है इनके बेसिस पे, कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए आती है जैसे वेडॉल हो गया, फिर थर्मल के लिए बोल सकते हैं हम लोग थर्मैक्स, और फिर डिजाइन के लिए बोल सकते हैं हम लोग ग्लैट, टाटा टेक्नोलॉजी, सम ऑफ देयर कंपनी, थाइसन ग्रुप तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आई थी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डोमेन के लिए भी आई थी. That is totally depend on you in which subfield you have to build your career, in which subfield you have a more interest. That is totally depend on you, because every branch have its own advantage and own disadvantage also. So now let's talk about your curriculum of mechanical. Okay. So just give me your overview about your curriculum. अगर हम COEP की बात करेंगे तो COEP में नो डाउट करिकुलम बेस्ड ही रहेगा. As we know that in every college there are its own different curriculum. The COEPs also have it established in 1854. Since there to now, it's always changing its curriculum. It maintained the up to date. It's हमेशा नई न्यू टेक्नोलॉजीज में ऐड करते हैं और नए नए सब्जेक्ट्स लाते हैं. जैसे हमें इस बार AIML भी है, जो कि काफी अच्छा है. बात है. हाँ, तो काफी अच्छा है. करिकुलम तो बहुत अच्छा है. हमें हमारे बेसिक्स सब्जेक्ट्स भी रहते हैं और प्लस हमें एडवांस बेसिक सब्जेक्ट मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब तो हर कॉलेज में होता है. और उनके ऊपर हमें कुछ प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं. जैसे अभी आप जब मैकेनिकल COEP में एंट्री होंगे तो आपको वहाँ पे सबसे पहले एक टरबाइन आपको दिखेगा. टरबाइन तो हमें एक टास्क दिया, मतलब हमें बोला गया था कि वो टरबाइन को एक बार देख के आओ, ताकि जब तुम लेक्चर में होंगे तो तुम्हें अच्छे से समझ पाएगा कि. तो काफी एप्लीकेशन बेस्ड है COEP का करिकुलम. सो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पूरे करिकुलम में जो गेम चेंजर होते हैं इन द टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट. सो वैसे कौन से सब्जेक्ट्स है दैट स्टूडेंट शुड मोर फोकस ऑन? ओके, तो सब्जेक्ट्स, basic subjects only. Some of the basic subjects are strength of material, thermodynamic, then manufacturing process, then theory of machine, and if you are telling that I have an interest in design, so some of the companies they are asking that in DOMC part also the design of machine component, like गियर के टाइप्स, गियर के डिजाइन वगैरह सब वगैरह, कुछ कौन से फर्स्ट गियर में इंट्रोड्यूस होते हैं वगैरह. तो यू थिंक कि ऑटोमोबाइल भी करना चाहिए? ऑटोमोबाइल दे आर टोटली डिपेंड ऑन द कौन सी कंपनी आपके इसमें आती है प्लेसमेंट. अगर बजाज आती है, हमारे साथ बजाज ऑटो भी आती है, तो बजाज ऑटो के लिए ऑटोमोबाइल मेरे हिसाब से आना चाहिए. कंपनी अगर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है, जैसे मुझे ITC में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि देखो मैकेनिकल वालों को समझेगा कि जो इंजन होता है वो फ्रंट व्हील साइड में रहना चाहिए कि रियर व्हील साइड में रहना चाहिए. सो इफ यू नो, कमेंट down below. So how would a student focus on theory and hands on? ऐसा कुछ है क्या कि मोर फोकस ऑन थ्योरी नॉट ऑन द प्रैक्टिकल्स, या फिर प्रैक्टिकल पे फोकस करो थ्योरी पर मत करो, ऐसा कुछ इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट? ओके, देखो हमारे मैकेनिकल में कैसा है, अगर आपको जितने अच्छे से थ्योरी समझेंगे उतने से आप उसको अप्लीकेबल कर पाओगे, मतलब उसको उतने अच्छे से आप उसका प्रैक्टिकल पोर्शन समझ पाओगे. तो बेसिकली आपको अपने बेसिक सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए ताकि आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. और अगर हम देखा जाए तो अगर आप प्लेसमेंट की बात करते हो तो प्लेसमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी सिर्फ आपके बेसिक्स देखती है
अगर आपको अपने बेसिक के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा आता है तो आप तो सिलेक्टेड ही हो। ओके, सो मैकेनिकल में बेसिक बहुत अच्छे से आना जरूरी हाँ, होता है। बेसिक वो एडवांस लेवल का कुछ नहीं पूछते ज्यादा। यस। सो दोनों इम्पोर्टेंट है, थ्योरी एंड हैंड्स ऑन। हाँ, hands on experience is also important. So, while studying, there are lots of unnecessary subjects. So, what are these subjects? What do you think? Bad subjects. I think it's biomedical. हाँ या It's जब हम biomedical. थर्ड ईयर में आए थे तो सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आए थे तो हमको थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट था बायोलॉजी करके, जो अच्छा, कि हाँ, biology. मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई काम के था। बट हमने एक बार हमारे टीचर को पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आपको जो आपका हार्ट है और आपका जो हैंड पंप है, जो वो किस तरीके से पंपिंग और उन दोनों का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना चाहिए वगैरह, ये सब। तो कुछ कुछ पोर्शन है जो आपको थिंकिंग लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस एस्पेक्ट में आपको बायोलॉजी दिया गया है, ऐसा उन्होंने कहा था। बट हमें नहीं पता, हमें तो सब कुछ एक दिन पहले पढ़ाई की थी। हाँ। तो मुझे ये बताइए, और एक बात इम्पोर्टेंट थिंग है कि मैकेनिकल करने के बाद कौन से ऐसे डोमेन है, गवर्नमेंट डोमेन, आपको कुछ आइडिया है क्या उसके बारे में? गेट देकर ओके हम ओके। कौन से डोमेन में जा सकते हैं, या फिर अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे ब्रांच से, जैसे कि अगर हम सिविल से इलेक्ट्रिकल से कंपेयर करेंगे तो कम ही है। बट मैकेनिकल में भी गवर्नमेंट के चांसेस है। अगर हम गेट क्रैक करेंगे तो गेट के बेसिस पे हमको पीएसयूज मिलते हैं। पीएसयू कौन से पीएसयू, ओएनजीसी, सभी के भाई, ओएनजीसी, गेल वगैरह, भारत पेट्रोलियम, जो अभी आई थी। हाँ, और ये सब रहते हैं। और अभी हमारे खुद सीओईपी में भी एक पीएसयू के अंडर काम करने वाली एक कंपनी है, महाराष्ट्र गैस लिमिटेड कंपनी करके, जो वन ऑफ द पीएसयूज ही बोली जाती है, वो भी सीओईपी में प्लेसमेंट में आती और कौन से है रेलवे में ऐसा कुछ? फिर रेलवे में, फिर एमपीएससी में एक आरटीओ करके, एएमवीआई की एक पोस्ट आती है मैकेनिकल के लिए, जो हर साल नहीं आती है बट आती रहती है फ्रिक्वेंटली, मतलब कुछ सालों के बाद आती है। जैसे कि अभी 2020 में आई थी और अब तक कभी आई नहीं है, तो वो हर साल नहीं आती है। और कभी और रेलवे में भी हमारे मैकेनिकल के लिए पोस्ट निकलती है, जो कि वो भी हर साल नहीं होती। वही बात लेकिन ऐसे ओवरऑल हाँ, है ओवरऑल है, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट। चांसेस तो रहते हैं। So now the most awaited topic, that is your placement. Yes. So tell me about your company, what they do, and what's your role in your company. टाटा टेक्नोलॉजी ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टाटा मोटर, जैगवार और अदर एमएनसीज कंपनीज को। जैसे कि अब सॉल्यूशन की बात करें तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि अगर मेरी कोई कंपनी है एमएनसी और मुझे उसमें मेरी गाड़ी में कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, उसकी इफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, तो मुझे ये मेरा टास्क मैंने टाटा टेक्नोलॉजी को दिया। टाटा टेक्नोलॉजी में जो मेरी टीम रहेगी, वो टीम उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि मैं किस एस्पेक्ट में इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसके चेसिस को, डिजाइन को कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर उसका एरोडायनेमिकली कुछ उसको डिफरेंट करना है, तो ये सब पार्ट में मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। एंड माई रोल इज द R&D रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड इन दैट अभी तक मुझे बताया नहीं गया है कि मुझे स्पेसिफिकली डिजाइन ही मिलेगा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे सब पार्ट होते हैं, बट उसमें का वन ऑफ द पार्ट डिजाइन होता है। और वो डिजाइन पार्ट मैंने अपने सीनियर को पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मोस्टली आपको डिजाइन ही मिलेगा, देखते। So did you done any internship यस before? यस यस, मीन्स सभी सीओपीएन को एक इंटर्नशिप करना कंपलसरी होता है आफ्टर द थर्ड ईयर। आई completed my internship in Thermax Limited. Thermax. That were in thermal domain. Yeah. How much your internship did impact on your placement? कुछ कंपनी में पूछा था क्या उसके बारे में? कुछ दूसरे कंपनी में पूछा था, बट मेरे टाटा टेक्नोलॉजी में नहीं पूछा था। मेरे टाटा टेक्नोलॉजी में मेरे पूरे कोरी के ऊपर गया था। नो कोई इंटर्नशिप, कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं। पर बाकी जो दूसरी कंपनी है, जैसे मैं आईटीसी में बैठा हूँ, मैं लैब में बैठा हूँ, मैं एटलस कैपको में बैठा हूँ, तो इन सब में मुझे एटलस कैपको में तो मैं नहीं पूछ पाया, बट आईटीसी और मुझे ग्लैड इसमें पूछा गया था थर्मैक्स के ऊपर। और थर्मैक्स के द्वारा मुझे मेरे थर्मल डोमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, जैसे मुझे कंडेंसर के ऊपर पूछा गया, मुझे इवापोरेटर के ऊपर पूछा गया, मुझे बॉयलर के ऊपर पूछा गया, बॉयलर कहाँ यूज होता है वगैरह, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये थर्मैक्स से मेरी इंटर्नशिप बहुत ज्यादा मुझे काम में है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। So what were the basic skills and technologies? कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं
that would be helpful during your placement, like MATLAB, ऐसे कुछ पूछा था उसके बारे में? मेरे टाटा टेक्नोलॉजी में मुझे पूछा गया था कि विच सॉफ्टवेयर हैव यू एवर डन द वर्क इन एनी सॉफ्टवेयर, बट मैं तो डिप्लोमा में किया था इस इंजीनियरिंग में, तो मैं पूरे सॉफ्टवेयर को भूल गया था। मैं वही आंसर दिया फ्रैंकली, पोलाइटली और ट्रूथफुलनेसली मैंने आंसर दिया कि मुझे अभी वो कमांड याद नहीं है, बट वंस आई गो थ्रू इट आई विल रिमेम्बर ऑल द कमांड। ओके, सो फिर उन्होंने कहा ओके। सो आपको क्या लगता है कौन से चाहिए? वी हैव टू नो दैट कि ये स्किल्स होनी चाहिए हमें। ये सॉफ्टवेयर हमें मतलब पता चाहिए। अगर हमारे सीवीपी करिकुलम में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि फ्यूजन 360, यू मस्ट नो, सॉलिड वर्क, कटिया, क्रियो। अगर आपको इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे से आता है तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके प्लेसमेंट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि तीनों पता होने चाहिए, एक कौन सा कोई भी एक सॉफ्टवेयर, और वो एक सॉफ्टवेयर आपको बहुत प्रॉम्प्टली आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो वैसा है। सो during our placement we go through a lot of materials like online materials, some stuff रहता है, तो ऐसा आपने कुछ रेफर किया था आपकी प्रिपरेशन के लिए? in online there is one Aprup Rao sir that they were doing the preparation for the GATE in YouTube. From that I have completed my strength of material subject. Then thermodynamic, thermodynamic पोर्शन वगैरह ये सब मैंने तो अपने बुक से किया था, आर के राजपूत करके बुक है। और फिर थ्योरी ऑफ मशीन और डॉम्सी वगैरह ये सब की जो बुक है, ये सब मैंने हमारे क्लास नोट्स जो थे वहां से रेफर किया। सो अब फाइनल लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपकी प्रोसेस क्या थी पूरी, एप्टीट्यूड, इंटरव्यू, वो सब कैसे था, कितनी देर तक चला, उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस थे? हमारे इधर टाटा टेक्नोलॉजी 2 रोल के लिए आई थी। फर्स्ट इज पीएलएम, सेकंड इज आरएनडी। पीएलएम मींस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो पीएलएम के लिए हम 4 लोग ही सिलेक्ट हुए थे एप्टीट्यूड से इंटरव्यू के लिए। बट वो 4 लोग में से बैठे थे ऑलमोस्ट ऑल मींस 99 लोग बैठे थे, बट उसमें से उन लोगों ने सिर्फ 4 लोगों को लिया। और फिर बाकी फिर आरएनडी में आते हैं, तो आरएनडी साइड उन लोगों ने 17 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया था। 17 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया था। उस 17 में हम पूरे लोग थे, हम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के, हम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लोग थे। तो हम सब लोगों को फिर उन लोगों ने जो अदर आरएनडी का रोल था, पीएलएम के लिए तो किसी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया, वो हम 4 में से फिर उनका रिजल्ट ही नहीं आया। बट जो आरएनडी का रोल था उन 17 में से उन लोगों ने फाइनल राउंड में हम 7 लोगों को सिलेक्ट किया, 6 लोग फ्रॉम मैकेनिकल, 1 इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल। तो ऐसा हुआ। और फिर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मेरे पास उसके कुछ क्वेश्चंस है, मैं वो कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लेंगे। और फिर बात आती है हमारे एचआर को टेक्निकल क्वेश्चन के। फिर हमारा टेक्निकल राउंड हुआ। टेक्निकल राउंड मेरा 1 घंटा 20 मिनट चला। एप्टीट्यूड में कुछ कोर के क्वेश्चंस रहते हैं? एप्टीट्यूड में कोर के क्वेश्चंस भी रहते हैं। एप्टीट्यूड में कोर के क्वेश्चंस रहते हैं। उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट करनी चाहिए? कोर के नॉलेज तो आपको जो आपने सब्जेक्ट्स तो वो बहुत कुछ डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। मतलब हमें तो थर्मोडायनेमिक के ऊपर भी कुछ, हमें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल बट बेसिक्स ही क्वेश्चंस थे। और फिर उसके बाद एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस थे उसकी भी एक लिंक है मेरे पास यूट्यूब की, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लेंगे, तो आप उससे कर लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। एप्टीट्यूड भी सिंपल क्वेश्चन थे, परसेंटेज के ऊपर थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर थे, जो कि इजीली कोई भी कर लेगा। बट टाइम बैरियर इज वन ऑफ द मेजर। ये आपको कम टाइम में सॉल्व करने पड़ेगा योर टेस्ट। ठीक है। सो अबाउट योर टेक्निकल राउंड। हाँ, सो नाउ इन माय टेक्निकल राउंड हमारे इधर 2 पैनल थे टेक्निकल के। मतलब 2 राउंड हुए थे? 2 पैनल थे। पैनल मींस देयर इज 2 पैनल। जो वो भी लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से पैनल में जाते हो। मैं तो एक सर के पास गया था, जो सर सभी लोग कह रहे थे कि सर टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वही मिला। अच्छा रहा। मतलब जब मैं वहां गया तब मुझे समझा कि सर कितने अच्छे थे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब मैं गया मेरे रिज्यूमे में जो था, मेरे रिज्यूमे में काफी सारी मिस्टेक्स थी, जो मेरे वर्ड्स थे वो सब में स्पेस नहीं थी, तो वो कभी भी बैड इंप्रेशन डालता है। तो तुम्हारा रिज्यूमे
कभी भी अच्छा होना proper. चाहिए, प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। वो तुम एक बार चेक करके ही जाओ, बट मैंने चेक नहीं किया था, वो मेरी गलती रही। फिर हम गए अंदर तो मैं पैनिक हो गया। तो फिर मुझे उन्होंने उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने टेक्निकल के क्वेश्चन पूछोगे, तो अगर आप अपने टेक्निकल के आंसर्स दे पाओगे तो आप सिलेक्टेड हो, अदरवाइज वी विल सी। मतलब डू एंड डाई वाली वाला सिचुएशन। सिचुएशन उन्होंने दिया। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे मेरे। उन्होंने पहले मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पूछा। मैंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे कॉलम एंड स्ट्रेट के ऊपर। एंड फॉर्चुनेटली कि मैंने कॉलम एंड स्ट्रेट एक दिन पहले ही करके गया था। ये पूरा लक के ऊपर गेम हुआ कि आपने पहले दिन क्या क्या पढ़ा है। पहले दिन क्या क्या पढ़ा है। मैं तो कॉलम एंड स्ट्रेट स्किप करने वाला था, बट एक बार गो थ्रू कर लेते सोचा। फिर उन्होंने मुझे 3 स्टेज में क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन वाज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रेट। सेकंड मीडियम क्वेश्चन इज दैट डू यू नो व्हाट इज रैंकिन फॉर्मूला। और स्टेनलेस स्ट्रेन समवॉट द सिलेंडरनेस रेशो मतलब क्या होता है करके। तो ये क्वेश्चन पूछा। फिर थर्ड क्वेश्चन इज दैट रैंकिन फॉर्मूले में चार सब पार्ट होते हैं, वो सब पार्ट के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो मैंने ये सब आंसर दे पाया। फिर उन्होंने वेरी गुड कहा। फिर बाद में उन्होंने और क्वेश्चंस पूछे। तो वो कोर के सब्जेक्ट्स पर ही था। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर ही पूरे क्वेश्चन मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर ही गया। आपका अच्छा सब्जेक्ट वही था। फिर बाद में फिर मेरा ट्रूथफुलनेस चेक करने के लिए उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या आपको महाभारत पता है क्या। मैंने बोला हाँ, यस। फिर ऐसे ऐसे मेरा क्वेश्चन गया। मतलब 1.20 मिनट में मेरा जो इंटरव्यू गया था, वो मेरा टोटली टेक्निकल नहीं था। उसमें कुछ कुछ बहुत इधर उधर के क्वेश्चंस भी थे। अच्छा। और व्हाट अबाउट द एचआर राउंड। एचआर राउंड वाज सो सिंपल। उसमें 5 क्वेश्चन थे जो कॉमन थे। फर्स्ट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विथ योर फैमिली बैकग्राउंड। सेकंड वन इज दैट टाटा टेक्नोलॉजी हैव अ ब्रांड बॉन्ड, आर यू एग्री विद दैट। सो हमने हाँ बोला। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपको हायर स्टडी करनी है क्या। हमने कहा नहीं। फिर और एक क्वेश्चन क्या पूछे थे, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछे थे उन्होंने। मतलब ये सारे बेसिक के क्वेश्चन रहते हैं एचआर वाले। बेसिक क्वेश्चन। और वेयर डू यू सी इन नेक्स्ट 5 ईयर। बस 5 क्वेश्चन। तो आपने पूरी प्रिपरेशन की शुरुआत कब से की थी। लाइक आपके 3rd ईयर के बाद से की थी उन छुट्टियों में या फिर। सभी ने कहा था कि मुझे, मेरे बड़े भाई ने भी कहा था कि 3rd ईयर के बाद करना चाहिए और 3rd ईयर के बाद ही करनी चाहिए थी, बट हमने नहीं किया था। हमने तब से नहीं किया, हमारी गलती रही। जब हमारे इधर कंपनीज आई, सबसे पहली कंपनी आई थी बजाज ऑटो, इलेक्ट्रोमेक, तब हमने हमारे प्रिपरेशन चालू किया। तब क्यों गलत बात थी, हमें पहले से करना चाहिए। ओके, सो जो व्हाट डू यू थिंक कि अगर स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 3rd ईयर से, तो उनको किस पर फोकस ज्यादा करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, और किस सब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। इन प्लेसमेंट के एस्पेक्ट से अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले आप लोगों को अपना कोर का नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। सेकंड वन इज दैट योर कम्युनिकेशन स्किल। थर्ड वन इज दैट द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पैनल। एंड द फोर्थ वन इज दैट द सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट कि अगर कोई किसी इंटरव्यू में अगर तुम फेल होते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। बट आपको अपने आप से कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि गिव अप नहीं करना चाहिए। उतनी कॉन्फिडेंस है आपको सेकंड कंपनी के। एट द एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है। ट्रस्ट द प्रोसेस आपका। सो कुछ टिप्स है जूनियर्स के लिए जो आप देना चाहते हो। जूनियर को टिप्स यही सब जो 4 जो दिया मैं अभी। और कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेटेड, गुड कम्युनिकेशन एंड CGPA। CGPA is most important। CGPA is most important। पहले से ही पढ़ाई करो, एटलीस्ट 7 के अबाउ CGPA रखो इन मैकेनिकल। 7 के अबाउ अगर आप रखते हो तो आप ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के लिए एलिजिबल हो, और 7.5 के अबाउ रखते हो तो आप सभी कंपनियों के लिए एलिजिबल हो। तो मुझे ये बताइए, और एक क्वेश्चन है क्लब्स के बारे में इन COEP की, वाज इट दैट मच हेल्पफुल। क्लब हेल्पफुल है, लेकिन तब तक आप अपने पॉइंटर को साथ साथ मेंटेन रखते हो। अगर आप क्लब में हो और आपका पॉइंटर अगर अच्छा नहीं है, तो अगर आप कंपनी के एलिजिबल नहीं हो पाते तो आपके अदर एक्सपीरियंस भी कई काम में आएंगे। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। तो क्लब्स के साथ साथ पॉइंटर भी मेंटेन करो। क्लब के साथ पॉइंटर भी मेंटेन करो।
और अपने इंटर्नशिप अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट जितने अच्छे रहेंगे उतने अच्छे ही तुम्हारे आ, उतने ज्यादा काम में आता है तुम्हारे प्लेसमेंट। आपके प्रोजेक्ट कौन से थे? मेरा मैंने मिनी प्रोजेक्ट जो यहाँ पे किया था, वन इज दैट थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, दैट हमने मिनी रेफ्रिजरेटर बनाया था, दैट वाज इन थर्मल डोमेन। एंड सेकंड वन इज दैट द अकॉस्टिक एनालिसिस, जो कि हम लोगों ने एक न्यूमेटिक गन होती है, उसके लिए हमने साइलेंसर बनाया था, जो कि इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्री में यूज होती है। तो उसके लिए हमने साइलेंसर बनाया। तो 2 ही प्रोजेक्ट्स थे? हाँ, मैंने 2 ही प्रोजेक्ट किए थे, और डिप्लोमा वगैरह में मैंने किए थे, बट वो सब मैंने यहाँ नहीं डाले थे, क्योंकि मुझे वो उतने अच्छे से ये रिमेम्बर नहीं थे, उसके अच्छे से उतने रिसोर्सेस नहीं थे मेरे पास, और हमने यहाँ पे और अदर डिजाइन के प्रोजेक्ट्स किए थे, बट वो भी मुझे उतने अच्छे से नहीं आते थे, तो मैंने वो नहीं डालना बेटर समझा। क्योंकि जो आप अपने रिज्यूमे में डालते हो, जितना आप अपने रिज्यूमे में डालते हो, वो अच्छे से मतलब तुम्हें आना चाहिए, तो ही बेटर रहेंगे। अगर आपका रिज्यूमे 4 पेजेस का है और आपको वो नहीं आता, तो वो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो जितना लिखा है उतना अच्छे से करो। तो व्हाट्स योर बेस्ट मेमोरी इन द COEP? बेस्ट मेमोरीज इन हॉस्टल यू कैन से। हाँ, हॉस्टल ही जब से हॉस्टल में नया काफी अच्छा है, काफी नए फ्रेंड्स मिले, क्योंकि अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आप 4 नए लोगों को जान पाते हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने कॉलेज में हो तो आप अपने कॉलेज में ही आना और जाना कर पाते हो। जब आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको अदर डिपार्टमेंट के लोगों से भी आपका इंटरेक्शन होता है, आपको 4 लोगों से कैसे बातें करना है वो आता है, आपको 4 लोगों के सामने रहना आता है, काफी हॉस्टल में रहना काफी कुछ आपको सिखाता है। एंड हाउ वुड यू रेट द प्लेसमेंट ऑफ द COEP इन मैकेनिकल ब्रांच आउट ऑफ 5? In mechanical branch, if I am comparing in Maharashtra, then it is a very good college. For the It's the mechanical, best college in mechanical for the in mechanical, for the mechanical in Maharashtra. I will rate 5 out of 5. 5. Okay. तो 100% प्लेसमेंट ऑलमोस्ट हो जाती है। 100%, हाँ, अगर आपने अपना CGPA अच्छे से मेंटेन किया, आपको अपने कोर अच्छे से आता है, तो ये 100% प्लेसमेंट आपको तो प्लेसमेंट मिल ही जाएगा। बाकी 100% क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो हायर स्टडी के लिए भी जाते हैं, तो 100% हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन जितने बैठते हैं उतना उनका हाँ, तो हो जाता है। उनका हो जाता है, बट उसमें भी कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे पैकेज ज्यादा चाहिए, ये रोल चाहिए, काफी लोग होते हैं, तो उनका रह जाता है, मतलब वो लोग नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो लोग प्रेफर करते हैं कि अगर उन्हें 6 साढ़े 6 लाख अगर उन्हें वो नहीं चाहिए, उन्हें उससे बेटर है कि वो हायर स्टडी या फिर कुछ और करना चाहेंगे, इसलिए वो लोग नहीं लेते, फिर रजिस्टर करने के बाद भी वो लोग नहीं लेते, तो इसलिए फिर 100% नहीं रहता कभी। So Pratik, thank you so much. Guys, if you're having doubt, Pratik is here. हम साथ में मिलकर कमेंट डाउन में आपके सारे कमेंट्स सॉल्व कर देंगे। So thanks Pratik for giving this nice podcast to us. Thank you so much. Thank you to you also for having you. Bye bye. Bye bye.